Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator, and you are watching Biology Path Bhavan. In today's class, we are going to discuss about the fourth chapter of class 7 ICSE, which is photosynthesis and respiration. Before starting the class, I would request all the newcomers to subscribe to my channel because through this channel, your concept will be crystal clear. So let's just not wasting the time and jump into the video. So students, as we all know, every organisms need energy to perform their basic life process. Now, basic life process such as growth, reproduction, excretion, response, respiration. Okay, so all these activities, to perform all these activities, they need energy. Now the question is, from where does this energy comes from? They get this energy from food. Food is the basic needs of our life, है ना? क्योंकि फूड से ही एनर्जी आ रहा है एंड इसी एनर्जी को यूज करके वी परफॉर्म ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. नाउ every organisms cannot make their food, right? The organisms which can make their or prepare their food in their body, they are called autotrophs. Okay, so auto means self and trophs means nourishment, means the organisms that are self nourished, okay, are called autotrophs. So you have already studied in your class 6 that animals take their food from others or dependent on others for their food, right? However, green plants can prepare their food, so they are called autotrophs, and rest of the animals are called heterotrophs as they cannot prepare their food. Okay, so green plants are called autotrophs. Green plants are called autotrophs, and the type of nutrition they have are called autotrophic nutrition. Okay, autotrophic nutrition. Now, the way or the process by which green plants can prepare their food is termed as photosynthesis, and this is our today's topic. So let's learn about photosynthesis. So photosynthesis क्या है? Photo means light and synthesis mean combining or preparing. तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? फोटो मतलब लाइट. लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज अगर प्रिपेयर हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली लाइट की प्रेजेंस में ही होगा. ओके, तो अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे तो कैसा रहेगा वो? द प्रोसेस बाय विच green plants make their food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen. Now देखो, अगर हम लोग खाना कोई खाना अगर प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को लगता है ना? वैसे ही प्लांट्स को भी फूड प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ज़रूरी होता है. तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड एनर्जी. These 4 raw materials are very important to prepare their food. Now, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो ये वाटर प्लांट्स कहाँ से ले रहा है? फ्रॉम सॉइल. ठीक है, सो वाटर सॉइल से ले रहा है एंड रूट वो एब्जॉर्व कर रहा है एंड इसी से वाटर प्लांट्स के अंदर जा रहा है. ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, तो उसी को ये जो प्लांट से डायरेक्टली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, क्लोरोफिल, हम सभी को पता है कि प्लांट्स में जो लीफ रहता है उसके अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, एंड उसी की हेल्प से ये लोग फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, एंड लास्टली एनर्जी, मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी मेटाबॉलिज्म हो जाए, कोई भी प्रोसेस हो जाए, उसमें एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी, ये फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी लगता है, एंड ये एनर्जी प्लांट्स सन से एज इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी ले लेता है। ठीक है, सन से आता है सोलर एनर्जी, इसी सोलर एनर्जी को यूज़ करके ये लोग फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्रोसेस क्या रहता है? यूजुअली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज मीन्स इट इज अ सिंपल सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज एक सिंपल सॉल्यूबल कार्ब्स है, carbohydrate. Okay, so photosynthesis is the process by which green plants prepare their food by combining carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They prepare glucose and oxygen. हर एक word and हर एक raw materials को मतलब लिखना ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये प्लांट्स के कौन से ऑर्गेन पे होता है? ये मेनली होता है प्लांट्स के लीफ में। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। तो अब मेसोफिल सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको जानने के लिए लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एनलार्ज करके देखना पड़ेगा। तो ये एक लीफ है, राइट? तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज करके इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आउटर लेयर होता है, एकदम बाहर के आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। एपी मतलब आउटर एंड डर्मिस मतलब लेयर, तो एकदम बाहर के जो लेयर होता है उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। ठीक उसी के नीचे थोड़ा टॉल टाइप ऑफ सेल्स आप लोग देख पा रहे हो, उसी सेल्स को हम लोग बोलेंगे पैलिसेड मेसोफिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैलिसेड मेसोफिल। ओके, एंड पैलिसेड मेसोफिल के एकदम नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आप लोग देख रहे हो, एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, मतलब स्केल्स के अंदर बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, राइट? तो इस टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल। ओके, क्योंकि इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा रहता है इसीलिए ये थोड़ा स्पॉन्जी टाइप ऑफ होता है। ठीक है, एंड ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू से बनता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जी मेसोफिल भी कहा जाता है। एंड इसके नीचे जो लेयर आप लोग देख रहे हो सेल की, वो है लोअर एपिडर्मिस। दिस इज द लेयर ऑफ लोअर एपिडर्मिस। ओके, अब देखो
ये पर्टिकुलरली अगर हम लोग पैलिसेड मेसोफिल को देखेंगे तो इसी के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक टाइप ऑफ ऑर्गन है जिसमें पिगमेंट्स रहता है, जैसे कि क्लोरोफिल। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स एंड इसी क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट ट्रैप होता है प्लांट की बॉडी में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट, सेल कंटेन न्यूमरस प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये जो पैलिसेड, स्पेशली जो पैलिसेड मेसोफिल होता है, मतलब जो ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो आपने देखे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स, इसी के अंदर ऐसे प्लास्टिड्स पाया जाता है। ठीक है, न्यूमरस प्लास्टिड्स रहता है एंड स्पेशली क्लोरोप्लास्ट, ओके, जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रहता है जो कि है क्लोरोफिल। ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड इसी के अंदर बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट रहता है जो कि है क्लोरोफिल। ओके, एंड ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरी होता है, उसी एनर्जी को सन से ट्रैप करता है ये क्लोरोफिल। ओके, नाउ ये जो क्लोरोप्लास्ट, ये इवेंचुअली लीफ के अपर साइड में ज़्यादातर रहता है। ये अगर एक लीफ है तो इसी लीफ के अपर साइड में, मतलब ऊपर के हिस्सों में, इसी साइड में ज़्यादातर ऊपरी हिस्सों में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है। अब आप लोग ही बताओ मुझे कि क्यों लीफ के अपर साइड में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है? ऑब्वियसली क्योंकि अपर साइड में ही सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है ना। लीफ के जो अपर साइड होता है वो ही ज़्यादातर सन में एक्सपोज होता है, तो ऑब्वियसली अपर साइड में अगर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए अपर साइड में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो अब देखो, प्लांट्स की लीफ के अपर हिस्सों में या फिर अपर साइड में ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बट लीफ के जो लोअर साइड होता है, अगर ये लीफ है तो ये लीफ के, ये है अपर साइड एंड इसके लोअर साइड मतलब ये नीचे वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो इसी रीजियन में, मतलब लोअर साइड में छोटे छोटे टाइनी पोर्स रहता है जिसको बोल सकते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है, क्यों ये लीफ में पाया जाता है? देखो, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये इसी स्टोमेटा के थ्रू आ रहा है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट्स के लोअर साइड में या फिर लीफ के लोअर साइड में ऐसे छोटे छोटे टाइनी पोर्स रहता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लीव्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर ये लीफ के एक क्रॉस सेक्शन है तो ये लीफ के अपर एपिडर्मिस है। मैंने अभी लीफ के स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को बोला था, ये अपर एपिडर्मिस है, ये पैलिसेड मेसोफिल है ना। ये जो है ये स्पॉन्जी मेसोफिल है एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, है ना। अभी लोअर एपिडर्मिस के अंदर बहुत छोटे छोटे, लोअर एपिडर्मिस मतलब एकदम नीचे लोअर साइड में, तो लोअर साइड में ऐसे छोटे छोटे टाइनी ऐसे टाइप ऑफ पोर्स रहता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड
अंदर जाता है, लीव्स के अंदर जाता है। एंड ये जो पोर्स है, इसी पोर्स को ओपन एंड क्लोज करने में मदद करता है गार्ड सेल, दैट इज बीन शेप्ड। ऐसे टाइप ऑफ बीन शेप्ड गार्ड सेल से ये पोर्स गार्ड रहता है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी ओपनिंग्स फाउंड ऑन द लोअर surface of the leaves which is surrounded by a pair of bean shaped cells called guard cell। जैसे कि हमारे रूम में डोर्स रहता है टू ओपन एंड क्लोज्ड, वैसे ही ये स्टोमेटा जो है ये एक छोटे टाइप ऑफ टाइनी पोर्स होता है। इसको गार्ड करने के लिए ऐसे बीन शेपेड 2 सेल्स पाया जाता है जो स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शंस आप लोग देख रहे हो ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज नथिंग बट अ पोर्स, बट इसी को गार्ड करता है ऐसे राजमा जैसे या फिर बीन शेप्ड जैसे स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलेंगे गार्ड सेल। ओके, गॉट इट? गार्ड सेल तो आप लोगों को समझ में आ गया, बट इसी गार्ड सेल के ऊपर एक टॉपिक है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा हर टाइम ओपन नहीं रहता है। ठीक है, ये स्टोमेटा कब ओपन होगा एंड कब क्लोज होगा, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द गार्ड सेल और द पोजीशन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज्ड होता है। तो ये कैसे होता है? देखो, जब भी डे टाइम होता है, मतलब सनलाइट जब रहता है, उसी टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट जनरली डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस करता है। एंड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो गार्ड सेल को ओपन रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी डे टाइम होता है तब इसी गार्ड सेल के बाहर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहता है। इसी सब्सिडियरी सेल्स के थ्रू वाटर गार्ड सेल्स में चला जाता है एंड गार्ड सेल्स पूरा वाटर से भर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? जब भी डे टाइम होता है तब गार्ड सेल के बाहर जो सब्सिडियरी सराउंडिंग सेल्स रहता है उसी के थ्रू वाटर गार्ड सेल्स में चला जाता है एंड गार्ड सेल बल्ज आउट हो जाता है। बल्ज आउट मतलब ऐसे ऊपर से ऐसे बल्जिंग हो जाता है। तो अगर एक सेल बल्ज आउट हो जाएगा तो अंदर में पोर्स प्रेजेंट रहेगा, है ना, दिखाई देगा। तो इसीलिए जब भी ये जो गार्ड सेल बल्ज आउट हो जाता है तब स्टोमेटा ओपन हो जाता है, तब ये जो स्टोमेटा है तब ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स एंटर्स गार्ड सेल बिकम टर्जिड, गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, फिर द वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स बल्ज आउट एंड देन स्टोमेटा गेट ओपन। अगर मैं और भी इजीली आपको मतलब ईजन अप कर दूँ इस चीज़ को, तो अगर एक बलून ले लो आप, ठीक है, तो उसमें अगर आप पानी भर दोगे तो वो बल्ज आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर गार्ड सेल को आप उसी के हिसाब से ही समझोगे तो आपको समझने में इजी होगा। गार्ड सेल भी बलून के जैसा ही होता है। जब भी उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो उसके वॉल बल्ज आउट हो जाता है एंड उसके अंदर से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये जनरली डे टाइम में होता है, क्योंकि डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एंड इसीलिए स्टोमेटा ओपन रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा एंड ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, बट ये तो गया डे टाइम में। बट नाइट टाइम में क्या होता है? देखो, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होना उतना ज़रूरी नहीं है, है ना।
तो नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज भी रहेगा तो भी चलेगा। तो तब क्या होता है, जब भी नाइट टाइम हो जाता है तो इसी गार्ड सेल के आसपास जो सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहता है, इसी गार्ड सेल से क्या होता है, वाटर इसी सेल्स में चला जाता है, वाटर बाहर चला जाता है। ठीक है, गार्ड सेल से वाटर निकल के बाहर आ जाता है। तो अगर एक बलून से आप वाटर को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना। वैसे ही होता है गार्ड सेल में भी, गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। आप इसके अंदर स्टोमेटा को देख पा रहे हो? नहीं ना, इसके अंदर है स्टोमेटा। पर जैसे ही वाटर बाहर निकल जाता है वैसे ही ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो वाटर कम्स आउट ऑफ गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब श्रिंक हो जाना। ठीक है, इस टाइम गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, इस टाइम गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है एंड इस टाइम गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है, फिर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल श्रिंक्स एंड क्लोजेस द स्टोमेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, तो आप लोग लिख पाओगे इजीली। डे टाइम एंड नाइट टाइम में क्या होता है ये भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा के बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ CO2 फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी बताया प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है वो एयर से डायरेक्टली इसी स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर चला जाता है। ओके, सेकेंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो मैं जब फोटोसिंथेसिस मतलब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन पाया जाता है, राइट। तो इसी ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत प्लांट्स में नहीं रहता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, एंड लास्टली एलिमिनेट एक्सेस वाटर थ्रू वाटर वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो प्लांट्स में जब भी एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एलिमिनेट देयर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर रिलीज हो रहा है ये भी स्टोमेटा से ही रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एडेप्टेशन ऑफ लीव्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। लीव्स के बहुत सारे एडेप्टिव फीचर्स होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो वो कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लीव्स हैव ब्रॉड वाइड एंड फ्लैट सरफेस टू एब्जॉर्ब सनलाइट। लीव्स कैसा रहता है, आप लोग अगर कोई भी प्लांट्स के लीव्स को चेक कर लो तो वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, ज़्यादातर फ्लैट होता है, मैक्सिमम ही फ्लैट होता है एंड वाइड होता है। जितना ज़्यादा वाइड होगा उतना ही ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व कर पाएगा। एंड फ्लैट होता है क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्व कर पाएगा, तो वाइड होता है, फ्लैट होता है एंड ब्रॉड होता है टू एब्जॉर्व सनलाइट। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो हैव स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीव्स टू एक्सचेंज गैसेस। ये भी पता है आप लोगों को कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस। ठीक है, टू एक्सचेंज गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है ना। CO2 enters into palisade mesophyll through stomata। ये जो फैक्टर है मैंने अभी बताया ये है स्टोमेटा। ठीक है, इसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है
एंड कहाँ पे जाता है, ये पैलिसेड मेसोफिल में जाता है, क्योंकि पैलिसेड मेसोफिल के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट एंड उसी के अंदर ही ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। इसीलिए इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चला जाता है पैलिसेड मेसोफिल में एंड वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ओके अच्छा, तो अब देखो, पैलिसेड मेसोफिल absorb maximum sunlight by the help of chlorophyll which is present in chloroplast। मैंने ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो लीफ के ऊपरी हिस्सों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, इसी क्लोरोफिल डायरेक्टली सन से सनलाइट को एब्जॉर्व करता है एंड ये क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, लीव्स के जो पैलिसेड मेसोफिल है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, वाटर एंड मिनरल्स फ्लोज थ्रू द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ जाइलेम प्रेजेंट इन वेन्स बाय ऑस्मोसिस। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में वाटर एंड मिनरल्स भी होना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस में वाटर एंड मिनरल्स नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो हर एक रॉ मटेरियल्स को लीफ में पहुंचाना ज़रूरी है। लीफ के अंदर जो पैलिसेड मेसोफिल रहता है उसके अंदर पहुंचाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 गया थ्रू द स्टोमेटा। सेकेंड, जो हमारे जो मैक्सिमम जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि पैलिसेड मेसोफिल में ही क्लोरोफिल रहता है तो उसमें सनलाइट भी एब्जॉर्ब हुआ। और वाटर ज़रूरी है, तो वाटर कैसे जाएगा, क्योंकि लीव्स के अंदर वेन्स प्रेजेंट रहता है। ये अगर लीव्स है तो लीव्स के अंदर ऐसे टाइप ऑफ वेन्स पाया जाता है एंड इसमें रहता है जाइलेम। मैंने जब भी प्लांट टिश्यू पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि जाइलेम एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इन दी प्लांट्स। तो ये क्या करेगा, सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है उसी मिनरल्स एंड वाटर को डायरेक्टली जाइलेम लेके जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टली ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है ना। जाइलेम टिश्यू से वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी तो एक एडेप्टिव फीचर्स है ना लीव्स का, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, veins also help in translocation of prepared food to other parts of the plant। इसमें भी लीव्स मतलब हेल्प करता है। कैसे, लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक जो फूड प्रिपेयर होता है, मतलब ग्लूकोज जो फूड प्रिपेयर होता है वो डायरेक्टली लीव्स से कहाँ पे चला आता है। अगर मैं इसको एक डिफरेंट कलर में दिखाऊं तो देखो, इसी से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये पहुँचता है ना। वो भी तो वेन से ही होता है, राइट, वेन से ही होता है ना। तो हमने क्या क्या देखे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वाटर है, ये वाटर रूट से जाइलेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली इन द लीफ ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वेन में रहता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ये जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है मतलब ग्लूकोज, ये प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स में इसको ट्रांसलोकेट करता है ना। ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है वो फ्लोएम का मतलब ट्रांसलोकेशन है एंड वाइट कलर में मैंने जो दिखाया है वो जाइलेम की ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। तो ये जाइलेम की स्ट्रक्चर है एंड ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लोएम से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ वे में फूड जाता है, ठीक है। एंड जाइलेम में ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल्स फ्लो होता है।
ठीक है। अच्छा, एक और एडेप्टिव फीचर है लीव्स का, दैट इज O2 रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा। जैसे कि लीव्स के लोअर सरफेस में बहुत सारे टाइनी टाइनी पोर्स या फिर स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, एंड इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में, वो बाहर चला जाता है। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कितने सारे एडेप्टिव फीचर्स है लीव्स के, है ना। ओके, सो नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, सिंपली वी कैन से दैट कि प्लांट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। पर ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये इतना ही इजी प्रोसेस है नहीं, इसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। तो उसी स्टेप्स को हम लोग इस प्रोसेस में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड बिकेम एक्टिवेटेड। अब देखो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। बट जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना शुरू करता है, तब ये डायरेक्टली सन से सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड इसी क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब सेकेंड क्या होता है, दिस एनर्जी स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल इनटू H+ एंड OH- रेडिकल्स। अब देखो ये जो सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, इसी एनर्जी के थ्रू वाटर को स्प्लिट कर देगा। इससे पहले मैं फिर से एक बार फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखो क्या होता है, CO2 प्लस H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से रिलीज होता है, रिलीज होता है, फिल की हेल्प से रिलीज होता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, राइट, O2 प्लस C6H12O6, राइट। ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाता है इसी एनर्जी की वजह से। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल सनलाइट से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड इसी एनर्जी के थ्रू H2O को, मतलब वाटर को स्प्लिट कर देता है H+ एंड OH- आयंस पे। क्यों करता है, अब देखो ये जो H+ आयंस में एंड OH- आयंस में वाटर स्प्लिट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलिसिस मतलब क्या है, फोटो मतलब लाइट एंड लिसिस या फिर लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो फोटो मतलब लाइट एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ये जो फोटोलाइसिस हो रहा है, इसमें H+ एंड OH- आयन रिलीज हो रहा है। अब देखो ये जो OH- आयन है, ये OH- आयन क्या करता है, H2O एंड O2 रिलीज कर देता है। ये जो फोटोसिंथेसिस में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ये ऑक्सीजन इसी OH आयन से या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से आ रहा है। एम आई क्लियर टू यू? फिर से मैं बता रही हूँ, एक बार अच्छे से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्लोरोफिल है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्टली सन से सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है H+ एंड OH- आयंस पे, ठीक है। ये जो OH- आयन है, इसी से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या फिर बाई प्रोडक्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अच्छा, और
ये जो हाइड्रोजन आयन बच गया, ये जो हाइड्रोजन आयन रह गया, इसी हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के ये ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये H2O ब्रेक डाउन होगा H प्लस एंड OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन पे ये क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा। इसमें से ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है, जो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, एंड रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस directly combine with the CO2 and prepare these glucose. Okay, this is the process. ये देखो, हाइड्रोजन combine with CO2 to form glucose. Simple, very simple. ठीक है, एंड एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है, जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है सब यूज नहीं होता है, सब प्लांट्स में यूज नहीं होता है। एक्सेस जो ग्लूकोज रह जाता है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, नाउ कम टू द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड सनलाइट, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। नाउ ये पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग इस फैक्टर्स को याद रख पाओगे। तो देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स को लिखा है एंड राइट हैंड साइड में उसके इफेक्ट्स लिखी हूँ। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एरो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होगा। मतलब ये जो अपवर्ड एरो है इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इज मतलब ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम रहेगा फोटोसिंथेसिस उतना कम होगा। क्लियर? सेकेंड, सनलाइट। सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? तो लाइट जितना कम रहेगा फोटोसिंथेसिस कम होगा, लाइट जितना ज़्यादा रहेगा फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा। बट इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, दैट इज़ अगर एक्सेसिव लाइट हो जाएगा, ठीक है, तो इट कैन डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल विच इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है, अगर एक्सेसिव लाइट होगा, एक्सेसिव लाइट अगर होगा तो वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस अपने आप में बंद हो जाएगा, है ना? तो एक्सेसिव लाइट इज़ नॉट ग्रेट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम लाइट की ज़रूरत है जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, एंड लास्टली दैट इज़ द टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इट विल ऑल्सो हार्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड हाउ? देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो इट विल डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स which are used in the process of photosynthesis। ठीक है, तो अगर एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम डिग्रेडेशन होगा एंड फोटोसिंथेसिस विल बी स्लोड डाउन। ठीक है,
नाउ कम टू दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर से एक बार मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशंस है लिख देती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, CO2 वाटर से कंबाइन होके प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या निकला, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एज इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ओके, नाउ ये जो ग्लूकोज रिलीज होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, इसमें थोड़ा बहुत यूटिलाइज्ड हो जाता है सेल में। मतलब प्लांट्स ग्लूकोज प्रिपेयर करने के बाद बॉडी में ट्रांसलोकेट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम, एंड हर एक जगह में जो सेल्स रहता है वो यूटिलाइज कर लेता है। बट मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है उसमें थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। मतलब प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करता है तब इसी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेके यूज़ करता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम मेजर जो पोर्शंस होता है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। लीफ के लोअर सरफेस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है उसी के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है या फिर डिफ्यूजेस हो जाता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। अब देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट्स निकला दैट इज ग्लूकोज। नाउ प्लांट बॉडी में इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड, मतलब ग्लूकोज को प्लांट कैसे अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है। तो उसमें से फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन लीफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस के टाइम में ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड होता है लीफ में, ये हम सभी को पता है। बट ये जो लीफ में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ ये सिर्फ ग्लूकोज, मतलब ये सिर्फ लीफ को ही लगेगा, रिक्वायर्ड होगा? नो ना, ऑब्वियसली डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दिस फूड। सो इस फूड को जो फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर हुआ उसको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बट इसमें क्या होता है, देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जितनी रैपिडिटी से ये ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उतनी ही रैपिडिटी से ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जितनी रैपिडली ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है लीफ में उतनी ही रैपिडिटी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इसीलिए ये ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्टार्च। ठीक है, क्यों स्टार्च में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के टाइम ट्रांसलोकेट नहीं हो पाता है। इसीलिए फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ये सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के स्टार्च बनाता है एंड इसी स्टार्च स्टोर हो जाता है लीफ में फॉर टेम्पोररी स्टोरेज। ठीक है, अब देखो नाइट टाइम जब आता है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब ये स्टार्च फिर से रिकन्वर्ट हो जाता है
into soluble sugar that is sucrose। तो पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के टाइम लीफ में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, बट जितनी रैपिडली ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उतनी ही रैपिडिटी से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इसीलिए डे टाइम में या फिर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उस टाइम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इसीलिए सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जॉइन करके स्टार्च को बनाता है एंड ये स्टार्च टेम्पररीली स्टोर हो जाता है इन द लीफ। अब जब नाइट टाइम होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, तब ये स्टार्च फिर से रिकन्वर्टेड हो जाता है सुक्रोज में। दिस इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है, मतलब दो मोनोसैकेराइड मिला के एक डाइसैकेराइड प्रिपेयर होता है एंड इट्स अ सॉल्यूबल शुगर, ठीक है। अब ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैसे? लीफ में वेन के थ्रू एंड स्टेम से फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये चला जाता है। तो मैंने क्या बोला, लीफ में वेन्स के थ्रू, लीफ में वेन्स के थ्रू एंड स्टेम में फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये फूड चला जाता है। अब देखो, फूड तो डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, बट जाने के बाद क्या होगा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फूड मतलब यूटिलाइज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि फूड हम लोग क्यों इंटेक करते हैं? एनर्जी के लिए। प्लांट भी फूड को इंटेक करता है एनर्जी के लिए, टू डू देयर बेसिक लाइफ प्रोसेस। मैंने क्लास में शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था। तो वही काम करता है। कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो प्रिपेयर होता है वो यूटिलाइज्ड होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस इन द प्लांट, एंड सम अमाउंट ऑफ जो फूड रह जाता है, मतलब सुक्रोज रह जाता है, वो फिर से रिकन्वर्टेड हो जाता है इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो स्टोर करना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे स्टोर करेगा? इन द स्टेम एंड फ्रूट्स। हम जो फ्रूट्स खाते हैं उस फ्रूट्स में प्लांट की एक्स्ट्रा जो सुक्रोज या फिर फूड है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछिए। मैं फिर से एक बार मतलब थोड़ा जिस्ट आउट जॉट डाउन कर देती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है लीफ में, बट उसी टाइम फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्टार्च फॉर टेम्पररी स्टोरेज इन द लीफ। बट जब भी नाइट टाइम हो जाता है तब ये स्टार्च फिर से रिकन्वर्टेड हो जाता है इनटू सॉल्युबल शुगर दैट इज सुक्रोज। इसी सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फूड एंड लीफ में वेन्स के थ्रू एंड स्टेम में फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये पहुंच जाता है। फिर जाके कुछ अमाउंट ऑफ जो फूड ये यूटिलाइज्ड होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड द रेस्ट ऑफ द जो फूड होता है वो रिकन्वर्टेड हो जाता है स्टार्च में एंड स्टोर हो जाता है in the stem and in the fruits. Okay, now come to the significance of photosynthesis and this is our last topic. Okay, देखो photosynthesis का फायदा क्या है? First of all, plant prepare food which in turn eaten by heterotrophs. Heterotrophs means the animals या फिर the organisms that cannot prepare their own food and dependent on autotrophs for their food, right? So plants food को prepare कर रहा है अपने ही body में, इसीलिए उसी plant को खा के या फिर intake करके हम सभी organisms जिंदा है ना, energy पा रहे हैं। We get energy by the plants या फिर from the plants. Okay, next
ऑक्सीजन which is produced as a byproduct of photosynthesis is needed for respiration, है ना. फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वही ऑक्सीजन को यूज़ करके हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, है ना. बिकॉज एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, इवन प्लांट्स ऑल्सो, है ना. प्लांट्स भी इसी ऑक्सीजन को यूज़ करके रेस्पायर कर रहा है. तो यही है सिग्निफिकेंस. ये दो सिग्निफिकेंस पढ़ लोगे तो हो जाएगा. ओके, सो आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. तब तक के लिए गुड बाय. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.